second, here is a problem हमारे पास. Okay, okay, that is okay. Okay, okay. Good evening, everyone. It's a very warm welcome to all of you, and I'm very grateful on the behalf of me and from the behalf of ma'am with us. We are being a faculty. We are very grateful to all of you who have joined us now, and I'm also very grateful to the guest speaker who have suggested this very important topic to all of us. And it is very important, which is because this topic is affecting our careers, this topic is affecting our personal life, this topic is affecting our professional life. So today the topic and the title of topic for today webinar is empowering yourself and overcoming fear. Okay, as fear is a normal human emotion, it protects us from danger, but sometimes, too often, sometimes it leads to the situation that fears become so much that abundant that it leads to the condition that it leads to the instabilities for the human on different levels, and it affects our life one way or the other. And obviously it also affects the level of confidence, it also affects the empowerment of any individual. Empowerment is actually the way that how individual is gaining confidence in his life, and how the individual have to gain control of in his life. That's called empowerment. So empowerment can be different for females, and empowerment can be different for males as well. The criteria and the factors are different for males of for the fear, and the fear criterias and you can also call the phobia criterias for the males. These are different, so it's gender specific topics obviously. So that's why in this webinar we will welcome our guest. So and also we will also contribute, me and ma'am will also contribute from our perspective as well, that we will talk from a different perspective and we will talk from a different gender overview. Okay, we will give different gender overview. Like for males there is a different pathway for empowerment, there is a different pathway for overcoming fear, and for the female there is a different pathway for overcoming fear and empowering yourself. So I am very grateful to Fatma Naeem, who is the student of DPT fifth semester, and I am very surprised and I am very amazed that she has suggested. And obviously, this is a great honor for her as well, that she is the first in the Khyber Medical University, and she is the first in our Khyber Medical University volunteer hub also, that she is leading, and she is the leading speaker in the webinar from all over the students. So she is a leader for all of us. So this is the emerging leader. Not only emerging, she is the leader for all of us. So this is very appreciable from my side, from ma'am's side, obviously. So to yes, to the guest speaker, we welcome you. Yes, now we are giving you the chance to now. Okay, now it's your turn, Fatma. Okay. Okay. Thank you, sir. Yes. Good evening. और सॉरी फॉर द ग्लिच जो हमारा जो सेशन का टाइमिंग था वो 9 PM था, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से मेरा कुछ इश्यूज आ गए थे, पर्सनल इश्यूज, जिसकी वजह से इसको 10 पे कन्वर्ट करना पड़ा. बट I think you can understand, guys. Let's start. I am Fatima Naeem from KMU. I'm the student of KMU, Khyber Medical University, Islamabad, and in DPT fifth semester. And सबसे पहले आई एम सो लकी एंड आई एम सो हैप्पी कि आई एम सो थैंकफुल टू सर वजाहत एंड मैम अलीज़े कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं आऊँ आप लोगों के सामने ये टॉपिक पेश करूँ. और मैंने ही इनको ये टॉपिक सजेस्ट किया था एंड आई वाज नॉट श्योर कि मैं ही इसको ये कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर टू प्रेजेंट इट. एंड माय टॉपिक इज़ एम्पावरिंग योरसेल्फ एंड ओवरकमिंग फियर्स. पहले ये टॉपिक पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आया, लेकिन स्टार्टिंग कुछ इस तरह से था कि जब सर का पहला सेमिनार था ग्रुप में, इशू हुआ कि इस तरह सेमिनार है और समथिंग एल्स, तो मैं सर के वो भी देखती थी, मैम अलीज़े और सर वजाहत के काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी सेमिनार्स को ज्वाइन करती थी. वो सिर्फ मैं ऑनलाइन देखती थी, जो रिकॉर्डिंग थी उसको ही देखती थी, कभी मैं गई नहीं हूँ. लेकिन आई रियली वांटेड टू ज्वाइन. सो
एक चांस मिला था मुझे फर्स्ट वाला जो ब्लैक होल में था, उसमें मैं गई, तो उस वक़्त मुझे वहाँ से फ़ील हुआ कि लाइक ये लोग जब कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी इस डर को ख़त्म करके आगे जाना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को नोट कर रही थी, जब हम लोग एंटर हुए उस वक़्त भी मैं कह रही थी मैं कैसे एंटर होंगी, मुझे जस्ट एंटर होना नहीं आता था उस वक़्त। मैं इतना उसमें कन्फ्यूज़ थी कि मैं इतने लोगों के सामने अंदर कैसे जाऊँगी, और फिर मैं सोच रही थी कि जब मैं अंदर जाने से इतना खौफ़ज़दा हूँ, तो ये सर और मैम सामने जाके इतने लोगों के सामने बोल कैसे लेते हैं। तो वहाँ से फिर मैं अपने अंदर से सोचती रही कि काश मैं भी अभी यहाँ पे ये 2 चेयर्स पे बैठे हैं, काश तीसरा चेयर मेरा होता इधर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इधर ऑनलाइन आ चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी फ़िज़िकल नेक्स्ट इंशाल्लाह इफ़ सर एंड मैम अलीज़ा विल गिव मी चांस देन आई विल प्रेज़ेंट इन ब्लैक होल इंशाल्लाह। सो ये मेरा थोड़ा कहानी थी कि कैसे मैं इधर आई हूँ और कैसे मैंने इसको ज्वाइन किया और ये टॉपिक मैंने क्यों सजेस्ट किया, बिकॉज मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ फियर्स थे, मेरी जो एबिलिटीज़ आई डोंट नो हैं या नहीं, लेकिन अल्लाह करे हो जाए, तो मैं उनको पॉलिश करना चाहती थी और यहाँ तक आना चाहती थी, बल्कि इससे बहुत आगे जाना चाहती थी। इट्स माई फर्स्ट स्टेप। और अब फेयर से रिलेटेड ही चलिए, एम्पावरिंग योर सेल्फ एंड ओवरकमिंग फेयर्स। व्हाट इज़ एम्पावरिंग योर सेल्फ? सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्पावरिंग मतलब अपने आप को पॉलिश करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उन पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना। अब कॉन्फिडेंस सबसे पहले हमारे घर से आता है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आप लोग लाइक इस तरह कुछ भी इवेंट्स वगैरह होते हैं या सोसाइटी में आप पाए जाते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि आप लोगों ने बात नहीं करनी, तमीज़ से बैठना है, और तमीज़ से बैठना है। बेशक अब ये तो नहीं है कॉन्फिडेंस बदतमीजी में नहीं आता, आप लोग ये नहीं है कि अपने बच्चों को बोल दो बिल्कुल कोने में बैठ जाओ, साइड पे बैठ जाओ, आप लोगों ने बात नहीं करनी, आप लोगों ने ये वो फला फला। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बोलें, या पेरेंट्स को चाहिए कि वो हमें बोलें कि हम घर में भी, जो घर में तो चलो हर किसी के पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब बाहर की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल की, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को फ़ोर्स करें कि उनमें वो अपनी जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, हर बच्चे में एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनको पॉलिश करना, उनको सामने लाने में टाइम लगता है, और ये हमारी अपनी विल होती है, विल पावर। अगर हम चाहते हैं, अगर मैं इसी तरह बैठी रहती, रोज़ाना जाके सेमिनार में बैठ जाती, कुछ भी ना गेन करती, तो फिर मुझे क्या मिलता? और एक ऑनेस्ट सी बात बताऊँ, उससे मैंने सेमिनार से कुछ भी नहीं सीखा था सर, यही मैं सोचती रही कि मैं भी करना चाहती हूँ। मेरा ध्यान टॉपिक पे नहीं था और ना ही बातों पे था, बस मैं ये सोच रही थी कि हाँ मैं भी करूँगी नेक्स्ट सेमिनार, आई विल इंशाल्लाह। सो बस ये है कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहिए, और एबिलिटीज़ को, अपने अंदर एबिलिटीज़ जो होती हैं तो उनको पॉलिश करना चाहिए, उन पे बिलीव रखना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, और फोकस रहना चाहिए। जब तक आप फोकस हैं तो आपका कॉन्फिडेंस है। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, मैंने एक जगह पे सुनी थी एग्जांपल कि मैग्नीफाइंग गिलास, आप लोगों ने पता नहीं सुनी है या नहीं, आई डोंट नो। मैग्नीफाइंग गिलास को शायद सुना हो कि अगर सनलाइट पे रखे तो उसके नीचे अगर पेज रखे तो वो जल जाएगा। अगर हम उस पे ऐसे, हम मैग्नीफाइंग गिलास सनलाइट पे पकड़ते हैं, नीचे पेज रखते हैं हम, अगर सनलाइट उस पे पड़ रहा है, हम कहते हैं हमारा हाथ थक के थोड़ी देर के लिए हम हटा के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं अभी भी हमारा हाथ थक के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, मतलब हम फोकस नहीं है। हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ा वेट करें, आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सा टाइम लग जाए, लेकिन हमें रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में है, रिजल्ट है कि हाँ हमें ये मिलेगा। सो वी शुड फोकस ऑन आवर रिजल्ट। तो हमें ये नहीं है कि अपनी जगह चेंज करें कि यहाँ पे ये बंद करेगा पेज, यहाँ पे ये करेगा, नहीं, हमें उसी जगह पे बेशक थक जाए हमारा हाथ, लेकिन हमें उधर रखना चाहिए। एट द एंड एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि वो पेज बंद हो जाएगा। इसी तरह ये नहीं है कि डायरेक्ट आप छत पे चढ़ जाओगे, फर्स्ट स्टेप होगा, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाना होगा, तीसरे पे, इस तरह स्लो स्लो आप ऊपर चढ़ेंगे। डायरेक्ट कोई लिफ्ट नहीं लगी होगी हर जगह पे कि आप लोग डायरेक्ट ऊपर चले जाएं। अब मेरा फर्स्ट ये सेशन है, आई एम सो नर्वस, आई डोंट नो हाउ टू टॉक, सॉरी, सॉरी अगेन अगर कुछ गलती हुई तो इट्स सॉरी। और इस तरह कि अगर इधर मैं ऑनलाइन आ गई हूँ, अभी मैं नर्वस हूँ, पहली दफ़ा मैं नर्वस हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा मैं आऊँगी, हर दफ़ा उससे पिछले से अगले वाला बेहतर होगा। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ इंशाल्लाह। और मैं ये ऑनलाइन तक ही नहीं रखूँगी, इंशाल्लाह मैं ब्लैक होल में और बाकी जितने भी सेमिनार्स मैं लीजिए और सर वजाहत के साथ इंशाल्लाह मैं आगे भी इंशाल्लाह करूँगी, फिजिकल भी करूँगी, जस्ट नॉट ऑनलाइन।
तो बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। और इंसान इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, जो भी हो, लेकिन वो कर सकते हैं, तो हमने अपने डर को अपनी वीकनेस नहीं बनानी, हमने वो चीज़ करनी है। और ये जो फ़ियर का वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, फ़ियर, फ़ियर एक हम पॉज़िटिव वे में लेते हैं, एक हम नेगेटिव वे में लेते हैं। पॉज़िटिव इस तरह से कभी-कभी डर जो होता है ना, डर, फ़ियर मतलब डर, तो ये पॉज़िटिव इस वे में ले सकते हैं ना कि लाइक अगर रेशनल, पॉज़िटिव को हम रेशनल भी कह सकते हैं, और अगर नेगेटिव सेंस में हम लें तो इसको इरेशनल कह देंगे। अगर पॉज़िटिव सेंस में लें तो लाइक अगर किसी जानवर से हमें डर लगता है या आग से हमें डर लगता है, तो ज़ाहिर है हमें पता है इसका रिजल्ट बुरा होगा। हमें 100% वी आर श्योर कि अगर हम आग को टच करेंगे तो ज़ाहिर है वी विल गेट कॉट फायर, हमें आग लग जाएगी। अगर किसी जानवर, किसी खतरनाक जानवर जो है उसके पास जाएंगे, उसको हाथ लगाएंगे, उसको छेड़ेंगे या वट, तो उससे भी हमें पता है, रिजल्ट हमें पता है कि हमें उससे खतरा है, डेंजरस है वो चीज़। तो इसका भी हमें फ़ियर है, और ये अच्छा है, क्योंकि अगर हमें फ़ियर ना हो तो हम डायरेक्ट जाके आग को भी हाथ लगा लेते हैं, हम जल जाते, जानवर को भी छेड़ देते हैं, वो हमें खा लेता है वट। तो ये पॉजिटिव सेंस में अच्छे थे, यहाँ पे फ़ियर होना चाहिए। लेकिन जो नेगेटिव वाला है कि हम कहते हैं कि इस चीज़ से हमें डर है लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे होते। हम्म, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हाइट फ़ोबिया था पहले, बहुत ज़्यादा हाइट फ़ोबिया था बचपन से। और अब ये तो नहीं है कि मैं जब भी कहीं हाइट पे जाना हो तो मैं डायरेक्ट बोल दूँ नहीं, नहीं मैं हाइट फ़ोबिया है मुझे, मैं ऊपर नहीं जा सकती। पहले मैं कहती थी, काफ़ी टाइम तक मैं कहती थी। और अभी जब फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने बोला कि देखूँ तो सही है क्या? मतलब क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो देख लूँ कौन-सा मैं गिर जाऊँगी। मतलब इतना तो मुझे लिमिट्स का पता होगा कि इधर से आगे गिरना होगा, लेकिन मैं थोड़ी हाइट गई, फिर थोड़ी उससे ज़्यादा हाइट मैंने पार की। करते-करते अब मेरा बिल्कुल जस्ट लाइक दिस ऑनलाइन सेशन, वेबिनार, मैं बार-बार इसी वज़ह से इसको कर रही हूँ, क्योंकि इसको मेंशन कर रही हूँ सेमिनार वेबिनार को, कि ये ही मेरा मकसद है कि मैं यहाँ आई हूँ, और इस मेरे ये जो टॉपिक है इसका यही मकसद है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, सिर्फ मैं नहीं हुई, जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं या जो भी अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है या देखेगा, उन सबको ये फियर्स होंगे, ऑब्वियसली सबको होंगे, क्योंकि हर किसी में होते हैं, ये वीकनेस नहीं होती। तो वो लोग बोलेंगे कैसे हमने करना है, ये सिर्फ सेमिनार्स की हद तक नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान कहते हैं कि ये मैं करना चाहता हूँ, बट वो कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके अंदर डर होते कि वो कैसे करेगा, व्हाट इफ़ आई फेल। तो हमें ये रिप्लेस करना है, व्हाट इफ़ आई फेल्स को किससे रिप्लेस करना है, व्हाट इफ़ आई ग्रो। हमें प्रोग्रेस को नहीं देखना कि मतलब कितनी मुश्किलात आएंगी, हमने रिजल्ट्स को अपने माइंड में रखना है कि हाँ हमें ये मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बीच में लो हो गया था, काफ़ी पहले मेरे में था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी, जब ये सेमिनार के बारे में मैंने घर में बताया तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरी अम्मी थी, और वो मुझे फोर्स की जा रही थी कि तुमने करना है, तुमने करना है, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू माय मदर। एंड मेरे में कॉन्फिडेंस पहले था, लेकिन बीच में इतना लो हो गया था यूनिवर्सिटी में आके, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो एक दफ़ा क्लास में, पता नहीं, आई एम वेरी वीक इन स्टडीज़, लेकिन बस जो भी है उसको, एक वो पर्सनल इशू होता है हर किसी का। तो क्लास में पता नहीं लकीली मैंने शायद एक क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया था। तो 2-3 और बच्चे भी थे शायद, तो मैम ने बोला था कि जिसने सही आंसर दिया मैं कल उनको चॉकलेट्स दूँगी। तो अगले दिन जब वो चॉकलेट्स लाई तो वो सबको दे रही है, किस-किसने, वो पूछ रही है किस-किसने मुझे आंसर सही दिया था। तो सारे बता रहे हैं मैंने दिया था, मैंने, और मैं ऐसे देख रही, मैं कहती हूँ मैंने भी दिया था, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब मेरे में इतना डर था, मैं बोल रही थी कि इतने ज़्यादा लड़के हैं, इतनी ज़्यादा लड़की, मैं इनके सामने बोलूँगी मुझे चॉकलेट, तो मैं उनके सामने, हालाँकि ये चॉकलेट आई कैन बाय माई सेल्फ, लेकिन मतलब एक वो होता है कि आपने किया है तो आपको मिलेगा, लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उनको बोल पाऊँ कि मैंने भी आंसर दिया था। तो वो मुझे अभी तक रिग्रेट है, नॉट फॉर चॉकलेट ऑनेस्टली, बट फॉर दैट कॉन्फिडेंस। वहाँ पे मुझे फील हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इस हद तक कि मैं कुछ भी नहीं, मतलब एक अपने राइट के लिए भी नहीं बोली। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है ना, इस बात का, इस एग्जाम्पल का मतलब ये था कि हमें अपने राइट्स के लिए इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि हम अपने राइट्स को अपने उन पे बोल सकें, राइट्स पे हम्म। बोल सकें। सो मैम अलीज़ा, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं एज अ साइकेट्रिस्ट? सॉरी मैम, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। Yes, माइक ऑफ। mic is mute kindly. Yes. या सॉरी फॉर दिस, मैंने देखा ही नहीं, ठीक है।
मैं आपकी स्टोरी में इतनी इंटरेस्टेड थी कि मैंने देखा ही नहीं कि माइक मेरा ऑन है क्या, ठीक है। सो या बच्चे देखें, फियर इज अ नेचुरल इमोशन है हमारे पास, ये तो यस। सबको होता है, ठीक है। अब आपकी कंडीशन में आज आप आई भी इसीलिए हैं, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कि अपने फियर को हम ओवरकम कैसे करें, ठीक है। आप आपने देखा, रिवार्ड वो चॉकलेट नहीं थी, दैट्स रिवार्ड, ठीक है। रिवार्ड आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपकी सेल्फ स्टीम को, आपकी ग्रोथ को। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर फियर, फियर आप जजमेंट कि लोग क्या कहेंगे, यस, उसकी वजह एग्जैक्टली। से आप ऑब्वियसली नहीं ले सकी वो चॉकलेट, एंड यू रिग्रेट ऑन इट कि आपको वो चॉकलेट नहीं मिली। सो ये नॉर्मल है। लेकिन जब आप खुद को बिल्कुल बैक साइड पे करते हैं ना, फियर क्या करता है, आपको बैक स्टेपिंग पे ले जाता है कि आपने पीछे होना है। तो उस तरह आप अपने साथ जुल्म कर देते हैं, ठीक है। आप कितनी ऐसी चीजें होती हैं, कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कितनी ऐसे ग्रोथ के ऑप्शन आप लूज कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। तो यस। फियर से ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली हमारे गेस्ट स्पीकर बात करेंगे, एंड दे आर शेयरिंग द स्टोरीज, एंड माशाल्लाह यू आर गोइंग वेरी वेरी वेल। थैंक सो यू। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपने लिए स्टैंड लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फियर जब हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है ना, फियर इज अ नेचुरल इमोशन, ये बिल्कुल कॉमन है, सब में होता है। लेकिन when it's control our life, then it's become a barrier for our growth. So इससे overcome करना is very very important. Yeah. Thank you so much, ma'am. And Sir Wajahat, would you like to speak? Please. यस यस श्योर। अच्छा, आपने बात की थी फियर ऑफ हाइट की, तो उसको एक्रोफोबिया एक्चुअली हम कहते हैं। तो फियर ऑफ हाइट और ऐसे बहुत से हमारे पास फोबियाज़ हैं, ठीक है, जो कि एक एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। जैसे कि फ़ियर, जैसे हमने बात की कि फ़ियर इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन, इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन विच इज़ जो आपको बचाता है फ्रॉम डेंजर, जो आपके सर्वाइवल में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कंडीशन में तो फियर इज़ फिजियोलॉजिकल, ठीक है, which is important for your body functioning as well, ठीक है, for your homeostasis and for your survival. But sometime if जैसे हम कहते हैं abundance of the extreme abundance of everything is bad, ठीक है। तो Yes. excessive abundance of everything is bad obviously। तो यहाँ पे जब fear का emotion भी if that controls you on your psychological level or your thinking patterns level, ठीक है, सो ये आपके बाकी ब्रेन एरियाज को, थिंकिंग पैटर्न्स को शट डाउन कर देता है ऑब्वियसली, ठीक है। Yes. एंड द थिंग इज के फियर एक ऐसा रिस्पॉन्स है, द थिंग इज थिंकिंग पैटर्न को आप इसमें देखें ज़रा, तो कि फियर आप फ्यूचर में कुछ हो ना जाए, ठीक है, आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ था और फ्यूचर में कुछ हो ना जाए, उसको अवॉइड करने के लिए आप वो करते हैं, ठीक है, कुछ एक्शंस लेते हैं, ठीक है। और वो एक्शंस नॉर्मल नहीं होते ऑब्वियसली, दैट्स आर पैथोलॉजिकल इन नेचर, ठीक है। एक थेरेपी है ओवरकमिंग फियर इन माय माइंड, दैट इज़ ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी, ठीक है। कि आपको अगर फियर ऑफ हाइट है या फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, फियर ऑफ हाइट को एक्रोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस को हम क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास होते हैं हॉस्पिटल में, जिनका जब हम एमआरआई करते हैं तो एमआरआई की मशीन बिल्कुल क्लोज्ड होती है, तो दे आर सेइंग कि नो नो वी कैन नॉट डू इट, बिकॉज वो ताबूत की तरह बंद एक है ना एमआरआई मशीन है, तो ऑब्वियसली दे फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इन कंडीशन के फोबियाज को डील करने के लिए ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ अबाउट सीबीटी, मैम इज़ फ्रॉम द साइकोलॉजी, मैम ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में बता देंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के पैटर्न्स को चेंज करते हैं। सो दैट्स अ थेरेप्यूटिक वे जो थेरेपिस्ट करते हैं। वो थेरेपिस्ट आपके पास साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और वो कुछ हीलर्स भी आपके पास हो सकते हैं। बट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना ज़रूरी है कि इट इज़ ट्रीटेबल। अगर ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाए जो आपकी लाइफ को बिल्कुल हर एस्पेक्ट से कवर कर लेना, अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है फियर की वजह से, सो इट इज़, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, इट इज़ ट्रीटेबल। और इसकी थेरेपीज़ भी हैं और इसको कोप अप करने के बहुत से मेथड्स भी हैं। सो दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट फियर। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। जैसे अभी सर ने और मैम ने बताया कि फियर हमारी वीकनेस नहीं है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, सम टाइम पॉजिटिव होता है, सम टाइम नेगेटिव होता है।
और ये मतलब हर बंदे में पाया जाता है, हर इंसान में, हर लिविंग, इवन कि आप एनिमल्स को भी देख लें, वो भी कई चीज़ों से डरते हैं, कभी वो इंसान से भी डर जाते हैं। और मैं ये यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। स्टार्ट में चलो कोई एक दो होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो होते हैं, अभी मैम अलीज़ा जिस पे हैं, सरवजहात जिस, ये लोग जिस स्टेज पे हैं, इनको बहुत टाइम लगा होगा। ये लोग कर पाते होंगे बहुत जल्दी, इन्होंने गेन कर लिया होगा इतना कॉन्फिडेंस कि ये आज यहाँ तक पहुँच चुके हों, इतने माशाल्लाह आगे चले गए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में इनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, फर्स्ट यस। सेमिनार मुश्किल, यस। फिर अगला उससे थोड़ा इजी, अगला इजी, इसी तरह हमने स्टेप्स लेने हैं अपने फियर को कम करने। अगर ये उधर ही बैठ जाते हैं, सर वजहत अगर एग्जांपल लेती हूँ, अगर सर की, अगर ये पहला स्पीच अगर इन्होंने ख़राब कर लिया था, तो ये अगर उधर ही बैठ जाते, अगला स्पीच ना देते, अगला ये सेमिनार ना करते, तो फिर ये कैसे इधर आते। इन्होंने अगला किया, उसमें भी ये डरे होंगे, उससे अगला बस आहिस्ता आहिस्ता। अब इतना हो गया। उस दिन मैं पूछ रही थी कि ये इतना कॉन्फिडेंस, मुझे लगा कि ये प्रिपरेशन करके ये लोग जाते हैं सेमिनार्स के लिए ना, तो सर ने बोले हमारा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं हैरान, 8 इयर्स से ये लोग बोल रहे हैं, मतलब इतना इनमें हिम्मत थी कि ये अपने आप को पॉलिश करना चाहते थे, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं इनका इधर आप लोगों के सामने इनकी वजह से आज मैं जो बोल रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, होप सो कि you can understand that it's my first time. I am a little bit nervous, so you should understand. Sorry. एंड फियर, अब हम फियर जो होता है, डर, फियर, वो हमें कई चीज़ों से होल्ड करके रखे होते हैं। किस चीज़ से वो हमें होल्ड करके रखते होते हैं कि हम नई चीज़ों को ट्राई नहीं कर रहे होते। लाइक किसी चीज़ से हमें डर है, लाइक स्पीच प्रेजेंटेशन मैम आपको दे रही है, कोई भी मैम आपको प्रेजेंटेशन दे रही है, हमें डर लग रहा है, हम छुप जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, या कुछ भी बंक कर देते हैं क्लास। हम कहते हैं हम जा नहीं रहे, हमें फियर है। क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उसमें। हमें नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो फियर हमें किससे रोकता है, नई नई चीज़ों को ट्राई करने से रोकता है। अब डर है, हम जा नहीं रहे, मतलब हम नई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे। ट्राई तो करो, क्या पता तुम कर सको। और सेल्फ डाउट आ जाता है जब फियर होता है, जहाँ पे डर होता है, सेल्फ डाउट कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। आप लोगों ने अपने आप को ये बोलना है कि मैं कर सकता हूँ। तो आप लोग पहले खामोशी में बैठ के वो प्रेजेंट करें, फिर एक दो लोगों को, अपनी फैमिली को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके वो प्रेजेंट करें, और इस तरह आप क्लास में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सेल्फ डाउट को भी ख़त्म करना है। और हेजिटेशन, जब फियर होता है तो हेजिटेशन भी आ जाती है उसी में, और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। जैसे उस दिन चॉकलेट मिल गई, मुझे नहीं मिली, क्या पता नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो थी जिसमें मैं छुप गई थी, ऑनेस्टली मैं उसमें छुप गई थी, मैं नहीं गई थी। और अभी होप सो अगली में मैं प्रेजेंटेशन में चली जाऊँ, और एक में मैं छुप गई थी, वो अभी तक किसी को पता भी नहीं है, लेकिन मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्योंकि अगर वो, क्या पता उसमें रिवॉर्ड क्या रखा हुआ था, जैसे मैम ने बताया चॉकलेट वाज माय रिवॉर्ड, बट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे वो मिला नहीं है, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, और अभी मुझे रिग्रेट है। तो फियर का सबसे जो नेगेटिव है ना, तो वो है रिग्रेट। बहुत सारे, आप, ये नहीं है कि आप बस कमरे में बैठ जाओ, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखो। ये यहाँ तक, ये मैंने पहले भी शायद किसी को बताई ये बात, आई डोंट नो किसको बताइए, सॉरी। जैसे लाइक अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बोलूँ कि मैं हाँ स्टूडेंट हूँ, मेरा क्या काम है दूसरों के कामों में टांग अड़ाने का। अगर कोई कमा रहा है कमाता रहे, कोई कुछ कर रहा है, सेमिनार्स कर रहा है तो करता रहे, प्रेजेंटेशन दे रहे तो प्रेजेंटेशन, नहीं मुझे अपनी ही स्टेज पे नहीं रहना, मतलब अपनी जिस जगह पे हूँ उसको भी परफेक्ट बनना है। नो वन इज़ परफेक्ट, बट वी शुड ट्राई आवर्स बेस्ट। तो मुझे ज़रा इर्द-गिर्द देखना चाहिए कि फ़लाँ बंदा क्या कर रहा है, फ़लाँ बंदा, इतना इंट्रोवर्ट हो के बंदा ना बैठे कि उसको पता ही ना हो कि फ़लाँ बंदा क्या कर रहा है, और फ़लाँ ने, हमें देखना चाहिए वो बंदा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ कि नहीं। हम उसको देखें, उसको आगे जाएँ, हम अपनी ये जो अभी मेरी जो स्टूडेंट लाइफ़ है, ये जो अभी मैं सेमिनार कर रही हूँ, इसका मेरी स्टूडेंट लाइफ़ पे भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेगा। मैं जाके ज़ाहिर है मैं बोलूँगी इतने लोगों के सामने मैं बोल पाई हूँ, वो तो मेरी क्लास है, वो तो क्लासमेट्स हैं, उनके सामने भी मैं बोल पाऊँगी, तो मैं उनके सामने भी बोल पाऊँगी, तो वो मेरा वो वाला सेटअप, वो वाला क्लास वाला एज ए स्टूडेंट में भी बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और मेरी जो बाकी की लाइफ है उस पर भी। तो हमें दूसरों को भी देखना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको देख देख के हमें अपना आगे लेके जाना चाहिए कि कैसे हमने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, हम, क्योंकि हर कोई कर सकता है। एवरी सर, यू वांट टू स्पीक? यस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, जब बच्चा पैदा होता है ना बचपन से,
ठीक है? yes, तो उस टाइम से ही उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? yes, और कॉन्फिडेंस इज़ नथिंग, जैसे मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, कॉन्फिडेंस इज़ नथिंग, और जो मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, इस रिजल्ट में पब्लिक स्पीकिंग को सीखते सीखते सीखते, ठीक है? कॉन्फिडेंट इज़ जस्ट बाय बीइंग योर सेल्फ, दैट्स इट, ठीक है? अगर मैम विल वांट के वो मेरे जैसे बने या मैं मैम की तरह बनूं, या फातिमा आप चाहें कि आप मैम की तरह बने, या मैम आपकी तरह बने, या मैं आप लोगों की तरह बनूं, ठीक है? देन द कॉन्फिडेंस विल नॉट कम, ऑब्वियसली। तो फर्स्ट चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि हर बंदे की आइडेंटिटी चेंज है, हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर बंदे की थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अपने आप को समझना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, इंट्रोस्पेक्शन। जो भी यहाँ पे हमारे पास लोग ज्वाइन हैं या जो लोग इसको ऑनलाइन देखेंगे आफ्टर, ठीक है? तो द थिंग इज़ कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को समझें, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है? इंस्टेड ऑफ बिकमिंग समवन एल्स, किसी और की तरह बनने के बजाय आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें। हर किसी का अपना एक नेचुरल स्टाइल होता है, ठीक है? एक नेचुरल पर्सनैलिटी होती है, और वही नेचुरल पर्सनैलिटी के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ कॉन्फिडेंस, और आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है? इफ़ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कैसे कंफर्टेबल हूँ अपने नेचुरल स्टाइल के साथ, अगर मैं इस वे में बोल रहा हूँ, ठीक है? इन दिस कंडीशन आई डोंट केयर किसी को अच्छा लग रहा है या किसी को बुरा बुरा लग रहा है, बट आई एम कंफर्टेबल इन माई वे, ठीक है? ऑडियंस को क्या लगेगा, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, अबाउट हिज सेल्फ। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सबसे पहले अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन में देखना है कि आपका बचपन कैसे गुजरा है। इफ़ योर चाइल्डहुड इज ट्रॉमेटिक और मुश्किल बचपन गुजरा है, तो उस थिंकिंग पैटर्न्स को आपने चेंज करना है। देयर आर डिफरेंट वेज फॉर चेंजिंग दैट थिंकिंग पैटर्न्स, ठीक है? आपको जिन बच्चों को बचपन में डिस्करेज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, ऑब्वियसली वो अडल्ट एज में कॉन्फिडेंट तो नहीं होते, ठीक है? वो हमेशा डरे-डरे रहते हैं, उनमें फ़ियर डेवलप हो जाता है, ठीक है? सो ऑब्वियसली उनका वो थिंकिंग पैटर्न चेंज करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अपने साथ कंफर्टेबल होना, अपने स्टाइल के साथ कंफर्टेबल होना, अपने थिंकिंग पैटर्न्स के साथ कंफर्टेबल होना, और अपने आप से सैटिस्फाई रहना, ठीक है? कि आई एम समथिंग एंड आई हैव दीज एबिलिटीज़, एंड और द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि दिस इज़ द वन टिप फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट, जो कि कोई वेबिनार या सेमिनार कोई भी दें, जस्ट क्लोज योर आईज बिफोर वेबिनार एंड सेमिनार, ठीक है? एंड जस्ट थिंक, इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो, एंड थिंक दैट आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है? जब आप सेमिनार में जाएंगे, यू विल बी दैट, ठीक है? सो कॉन्फिडेंस इज अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ठीक है, जो कि टाइम के साथ बनती है, और वो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है जस्ट बीइंग योर सेल्फ, ठीक है? आप कंफर्टेबल हैं अपने साथ, ठीक है? यू एक्सेप्टेड योर सेल्फ एज इट इज, दैट्स योर ट्रू सेल्फ, दैट्स योर जेन्युइन, ठीक है? सो दिस इज एक्चुअली अ कॉन्फिडेंस, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, दिस इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस, यस, इन माई ओपिनियन। सो यस मैम, थोड़ा सा अगर इस पे बात करना चाहें अबाउट कॉन्फिडेंस के, व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन व्हाट एक्चुअली द कॉन्फिडेंस इज? ऑब्वियसली सर, कॉन्फिडेंस हमारा, जो ये फियर है ना, फियर वर्ड, इसने सब चीज़ें खराब की। फियर क्या है कि लोग क्या कहेंगे, लोग, एक इस जुमले की वजह से इसने लोग क्या कहेंगे इसने तबाहियां की हुई हैं, ठीक है? हमारी सोसाइटी में कोई बोल नहीं पा रहा, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ कि हम अकेले हो जाएंगे, अगर हम बोले तो हम अकेले हो जाएंगे। तो जब ये चीज़ें आती हैं ना, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करती हैं। यस, और उन लोगों की ही वजह से मैं भी हुई, हमारे में बहुत कॉन्फिडेंस हो, बट लोग क्या कहेंगे, इस जुमले ने सोसाइटी में कॉन्फिडेंस से ऊपर लेवल पे चला गया ये। और इसने इतना ओवरकम कर लिया ना कॉन्फिडेंस को, मतलब खा गए कॉन्फिडेंस को, ये सिंपल वर्ड में, कि ऐसा हो गया कि ये हमारे कॉन्फिडेंस को खाने वाला सिस्टम है, वो लोग इसी पे लगे हैं। जी सर। अच्छा, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट किया कि लोग डरते हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है, यस, अकेले रहने में। ये मैं आपको अपने पूरी लाइफ की जो पब्लिक स्पीकिंग मेरी सीख है, कि इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट, यस, या, ठीक है? तो अलोन अपने साथ रहना इम्पोर्टेंट, अपने साथ कंफर्टेबल होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और ये एक मेरा क्वेश्चन होता है, व्हाई यू विल वांट एनीवन टू कंप्लीट यू एंड टू कम इन योर लाइफ, जो कि आपको कॉन्फिडेंट बनाए? नो वन कैन मेक यू कंप्लीट, यस, नो वन कैन मेक यू हैप्पी, कोई भी नहीं।
that is yourself only. लाइक Yes. सर फियर से ओवरकम करने के लिए फर्स्ट यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। Yes. पहले अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू देयर आर 4 वेज टू हाउ टू नो योर इमोशंस। इमोशन इंटेलिजेंस क्या होता है? यू आर अवेयर टू योर इमोशंस। Yes. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है? आप सिर्फ अपने ही नहीं, आप दूसरों के भी इमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फियर तो खत्म हो जाएगा। व्हाट द 4 स्टेप्स? फर्स्ट वन इज यू शुड बी अवेयर फ्रॉम योर सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने इमोशंस का पता होना चाहिए। व्हाई यू आर सैड, व्हाट्स ट्रिगर यू, आप परेशान क्यों हैं, क्या आपको ट्रिगर कर रहा है। जब आप अपने आप से अवेयर होंगे तो तभी आप दूसरों के पास अवेयरनेस, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ है, 1000 रुपया है, तो आप किसी को 500 रुपया लोन देंगे ना। जब आपके पास खुद ही नहीं है तो आप किसी को कैसे समझेंगे? द सेकेंड वन इज एम्पैथी। आप अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी समझें, ठीक है? सिर्फ यही नहीं, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है एंड वो डर रहा है किस चीज़ से कि यार मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। तो ज़रूरी नहीं है जाके उसे मॉक करो कि ओहो यार तुम तो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। नो नो नो, आपने ये नहीं कहना, इट्स अ नॉर्मल थिंग, मुझे भी ऐसा होता है, ठीक है? मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, ये जो तुम्हारा ये इमोशन है ये मेरे साथ भी हुआ है एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। द थर्ड थिंग इज इमोशनल रेगुलेशन। आप अपने इमोशंस को समझो कि ओके इट्स टोटली फाइन, अभी मैं डर रहा हूँ तो ओके डरने दो, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल थिंग, सब भी डरते हैं, लेकिन ये डर मेरे कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं कर सकता। हिम्मत ये होती है कि आपको डर लग रहा है लेकिन उसके बावजूद आप वो काम कर रहे हैं, दिस इज अ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? और द लास्ट माय पॉइंट इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट, योर फ्रेंड, योर फैमिली, ठीक है? कोई भी आपका अच्छा फ्रेंड, आपकी फैमिली है, आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कि यार मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे डर लग रहा है, लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो वो आपको जो सपोर्ट करेगा, वो आप भी किसी की सोशल सपोर्ट बन सकते हैं। और जब आपको फियर हो तो कोई आपकी भी सोशल सपोर्ट बन सकता है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं सब यूथ को ये भी बात समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी एक्चुअली जवान नस्ल है, जवान जनरेशन है, दिस जनरेशन जी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? कि सॉलिट्यूड इज़ नॉट अ कर्स, लोनलीनेस इज़ नॉट अ कर्स, ठीक है? अकेला रहना, अपने साथ सेटिस्फाई रहना, अकेला रहना भी एक ब्लेसिंग है, सॉलिट्यूड इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है? तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ लीडर, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप अकेले रह सकते हो। If you want to become confident in your life, you should be able to learn कि how to be alone in your life, ठीक है? जब आप एक स्टेज पे होते हैं, आप एक हायर पोजीशंस पर होते हैं, और जब आप टॉप पर होते हैं तो वहाँ पर आप अकेले होते हैं, ठीक है? यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इफ़ द पीपल विल सपोर्ट यू और नॉट सपोर्ट यू, योर माइंड शुड सपोर्ट यू शुड सपोर्ट योर माइंड एज वेल, ठीक है? तो यहाँ पे अकेलेपन से बहुत अच्छा, यहाँ पे जो फियर क्रिएट हो रहा है ना, और कॉन्फिडेंस का ना आना, ये भी एक है कि हम अकेले ना रह जाएं, ठीक है? सो अकेले रहने में कोई गलत नहीं है, ठीक है? सॉलिट्यूड इज़ अ ब्लेसिंग, और सॉलिट्यूड में, खामोशी में ही इंसान अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है और अपने आप के साथ कनेक्ट करता है। अपने साथ आप कनेक्ट हो गए, यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑल ओवर योर लाइफ। यस। ओके Thank you so much. या बच्चे, आई यस। वांट टू ऐड समथिंग। सर ने कहा सॉलिट्यूड इज ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट इसका बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर के कहने का मतलब ये नहीं था कि आप बिल्कुल ही अकेले हो जाओ। यस। अकेला ही होना होता तो फिर हम दुनिया में क्यों आए, जंगल में रहते, इर्द गिर्द लोग ही ना हो। हम अकेला रहना का मतलब ये नहीं है। अपने आप का मी टाइम इज अ गुड थिंग, बट अगर 24 घंटे में मी टाइम है ना, तो ये बिल्कुल, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है? यस। यस। तो ये जो सर का पॉइंट है, इसको आपने इस तरह नहीं उठा के ले। सर ने कहा था अकेले रहना है और खुद को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए फिर अगर हमने यही करना होता कि अकेले रहना है, तो इट्स कॉमन थिंग ना, लॉजिकली बात है। हम दुनिया में क्यों आए, हम जंगल में रहते, लोगों के साथ हमने रहना ही नहीं था, ठीक है? सो ये यस। सॉलिट्यूड इज अ गुड थिंग, बट यस। द बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको यहाँ पे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सॉलिट्यूड क्या है और मी टाइम में हम कैसे कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है
अब आप इतने सॉलिट्यूड के आदी हो गए, आप लोगों में बैठ ही नहीं सकते, लोगों का ओपिनियन ही नहीं सुन सकते, लोगों की बात ही नहीं सुन सकते। यस, जी यहाँ पे मैं एक पॉइंट फिर फातिमा की तरफ जाएंगे ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे एक या फ़र्क है सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में। यस सॉलिट्यूड यस का मतलब ये है कि आप अपने साथ कॉन्फिडेंट हैं और अपने साथ टाइम गुजारते हैं और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि यस आपकी अंटिल अंदर मेंटल प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं, और अपने आप को आप टाइम देते हैं और अपने आप के साथ रहने में यू आर वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं, अपने साथ लव करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, इन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वांटिंग दैट लव फ्रॉम ऑल अराउंड अस। ठीक है, you should be the source of love, you should be the source of dedication, respect and all these things. This is called solitude. Loneliness एक extreme stage है। ठीक है, obviously loneliness साइकोलॉजिकल लेवल पे इट लीड्स टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ बैलेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट। इन दिस जनरेशन क्या हो रहा है कि इन दिस जनरेशन सोशल मीडिया का यूज़ एंड ऑल दिस सेशन, ये चीज़ है ना, तो ये भी एक लोनलीनेस क्रिएट कर रहा है, सॉलिट्यूड क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा पॉइंट था। नाउ ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द आवर गेस्ट स्पीकर। यस प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, इन्होंने बहुत अच्छा वेल एक्सप्लेन। एंड जो सर की एक बात है कि लाइक हमें अकेला रहना चाहिए, अकेला बिल्कुल भी अकेला, जैसे मैम ने और सर ने दोनों ने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस सेंस में लोनलीनेस और सॉलिट्यूड, और हमें ज़ाहिर है अपने इर्द गिर्द इतना भी अकेला नहीं होना चाहिए कि कोई हो ही ना जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिले कि मतलब हमें पता ही ना हो दुनिया क्या काम कर रही है, हमें इर्द गिर्द कुछ तो पता चले कि है क्या। अब बिल्कुल अकेला कमरे में बंद होके बैठ जाओ तो दैट्स नॉट गुड। और मैम की एक बात जो ये है कि लोग क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी का सबसे मेन इशू ये है कि लोग क्या कहेंगे। मैं उस वक्त बोलना चाह रही थी लेकिन यू आर फ्लुएंट सो दैट्स वाई मुझे डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। तो लोग क्या कहेंगे ये हर वक्त मेरे माइंड में होता है कि जब भी कोई कुछ कहता है तो मुझे मैं खुद भी कभी कभी कह लेती हूँ लोग क्या कहेंगे, लेकिन मोस्टली मेरे में ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं ये कहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे इसको हमने साइड पे रखना है। मेरी जो बड़ी सिस्टर है, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा इस तरह करती है कि कोई भी काम करती है तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मुझे उसको इतना गुस्सा आता है उसको देख के कि लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हें कोई परेशानी होती है तो वो लोग तुम्हें आके सोल्व कर दें, तुम्हारे सॉल्यूशंस वो बनते हैं, तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए होती है वो लोग तुम्हें आके देते हैं, या फिर तुम ज़ाहिर है पॉजिटिव तुम वे में जा रही हो। अब अगर ये सेमिनार में वो बोली, अगर मेरे घर वाले ना मानते, वो बोलते लोग क्या कहेंगे, तो लोग मतलब ये तो पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ में हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन अगर पॉजिटिव जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो उसमें लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को हमें बिल्कुल साइड पे रखना चाहिए। और एट द एंड अभी सेशन को हम एंड भी करेंगे, और उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो फियर का वर्ड है, कॉन्फिडेंस को लाना है, फियर को कैसे ओवरकम करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपको फियर किस चीज़ से है, सबसे पहले उस पर फोकस करना है कि मेन रीज़न क्या है, क्यों आप लोग ये नहीं कर सकते, वजह क्या है, किस चीज़ का फियर है, उसको फोकस करना है। फिर आपने सोचना है कि कैसे मैं इसको ओवरकम करूँगा। स्लोली स्लोली आपने पॉइंट्स करने हैं अपने माइंड में सेट, या वट एवर आप फर्स्ट स्टेप लें, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लें, करते करते आप एक स्टेज पर पहुँचेंगे कि आप फिर उस मुकाम तक पहुँच के आप वो सोचेंगे कि वो भी एक दिन था कि जब मैं इतना डर रहा था और आज मैं इतना आगे आ चुका हूँ। तो इस तरह भी हमारा फियर काफ़ी कम हो जाएगा। और हमें डिफरेंट अब इस तरह होता नहीं है कि एक ही चीज़ से मुझे फियर, यहाँ आने से नहीं, और क्या कितनी ही और चीज़ों से भी मुझे अपनी लाइफ में फिर हो गई। ये नहीं है कि सिर्फ एक पे मैं फोकस करूँ और बाकी चीज़ों को भी साइड पे रख लूँ, रहने दो उन चीज़ों को, इसमें मैं आगे चलूँगी नहीं। सबको हम साथ साथ लेके चलेंगे, अपने हर डर ख़त्म करेंगे। और डर किस वजह से ख़त्म होते हैं कि हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उन पे बिलीव रखने के, हमारे एक्शन। अब वेट नहीं करेगा कोई, आपको कॉन्फिडेंस आपका वेट नहीं करेगा, वो खुद चल के आपके पास नहीं आएगा कि फियर ख़त्म हो जाए आपका। आपने खुद कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जैसे कुछ टॉपिक या डिस्कशन या वट एवर फैमिली इवेंट या जो भी उस तरह कोई डिस्कशन वगैरह हो रही है, तो आपने कुछ बोलने, कुछ ज़रूरी बात करनी है, सब अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन आपने भी कोई आपके माइंड में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात आ रही है तो आपने वो करनी है। अब ये तो नहीं अगर कोई आपको मौका नहीं दे रहा बोलने का तो आप बस चुप होकर बैठे रहे, वो खुद तो नहीं आपके पास आएंगे, हर कोई अपना अपना बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तो अगर आप लोग चुप होकर बैठे रहेंगे फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार ये मैंने पॉइंट तो बोला ही नहीं है। लेकिन वो खुद तो आपके पास नहीं, आप खुद थोड़ा कोशिश करेंगे, अपनी एबिलिटीज़ जो होंगी उन पे बिलीव रखें, एक्शन करें,
बैठे रहने से खुद कॉन्फिडेंस चल के आपके पास नहीं आएगा। ये सारा कुछ जो डर होगा खुद ब खुद कम नहीं होगा, ज़ाहिर है कुछ करेंगे तब बैठे बैठे हम कहते हैं हाँ हम आज डर रहे हैं हम कल नहीं डरेंगे। क्यों? आप कुछ करोगे तो कल नहीं डरोगे ना, वरना कल भी आपका डर ऐसा ही होगा। तो हमें फियर को भी ओवरकम करना चाहिए और अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं उन पे बिलीव रखना चाहिए, बूस्टअप करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए अपने आप को। और दैट्स द टॉपिक। ऑडियंस में किसी को कुछ कहना है? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है? तो इस सेशन को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन फिर ज्वाइन करते हैं, ठीक है? उसमें हम देन वी विल गिव द चांस टू द ऑडियंस, ठीक है? ओके।